Hello everyone. Now I'm telling you about MS Access. Basically, MS Access is a database management tool. We can manage the database through MS Access. Basically, what is the meaning of database? Database is a collection of data which we can maintain it, um, and data always in the form of row and table when you are using database. So MS Access basically maintain relational database management system. That means it is a RDBMS, relational database management system, and it is slightly different from MS Excel. And what the main advantage of Access is, we can filter the data as per our requirement. We can create the database and we can maintain the things. The extension of file in MS Access is .accdb. In previous version like MDB also there. Now they what the things are present in MS Access. Now first I'm opening how to open MS Access. Then after that I'll explain it. Uh, Go to programs, MS Office. Here is MS Office. Here is MS Access 2010. Now open it. The very first thing is there. Whenever you are opening, this is the first screen. Available templates. Left side maintain whatever database you have created, and right side maintain name of the database and create it. So this is the blank database. Recent available templates also there. Recent templates means already templates are there. So these are the thing, but there is no templates are available. We are maintaining database. So whenever you are opening first time database, it can maintain the database or first create the database very first time. Next time it will not create the database. Now what exists in database? First I am creating it. That is the MS Access screen. Now we come to the point which things are available in MS Access. First I will minimize it and understand it. Basically, the four major area covers it: table, query, form, and report. These four things maintain it in MS Access. First, table, queries, forms, and reports. And all these four things we can maintain in a single database, which we have created. Just we have created. जो अभी हमने create करा. हिंदी में बोल दूं तो MS Access एक relational database management system है जो डेटाबेस को मेंटेन करता है. एक्सेल से डिफरेंट है. हम डेटा इसमें टेबल सेपरेट बना सकते हैं. देयर इज नो फैसिलिटी अवेलेबल इन एमएस एक्सेल. टेबल की फैसिलिटी बनाने की नहीं है. क्वेरीज हम हमारे अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हैं. फॉर्म्स हम हमारे अकॉर्डिंग डेटा जो भी स्टोर है उसको देख सकते हैं. रिपोर्ट्स हम हमारे अकॉर्डिंग हमारी रिपोर्ट्स हमारे आउटकम प्रिपेयर कर सकते हैं. तो टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, ये चार चीजें मेन इंपॉर्टेंट है जो MS एक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है. अब हम MS एक्सेस की स्क्रीन पे चलते हैं. वेरी फर्स्ट थिंग ये फाइल टैब है. फाइल टैब ये बताते हैं कि सेव करना, आपको ओपन करना, सेव एज करना. ये आपके डेटाबेस जो प्रीवियसली क्रिएटेड ये देख रहे हैं. ओपन से फाइल एग्जिस्टिंग ओपन होगी. होम से आपके बेसिक थिंग्स अवेलेबल है. सॉर्टिंग करना हो तो सॉर्टिंग मतलब आप डेटा को सॉर्ट करना असेंडिंग डिसेंडिंग में वो कर सकते हैं. बाकी आप टेक्स्ट का अलाइनमेंट कर सकते हैं, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, यहाँ से दिस थिंग. क्रिएट में आपके पास ऑप्शन है. जो 4 पार्ट्स मैंने बताया वो 4 पार्ट्स, ऑल 4 पार्ट्स आर अवेलेबल इन दिस प्रॉपर टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स. दिस 4 थिंग्स आर अवेलेबल व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड इट. एक्सटर्नल डेटा, बाहर से हमको कोई डेटा लेना है. एक्सेल एक्सेस, इन सब में डेटा आप सेव कर सकते हो और एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों तरह से कर सकते हो. डेटाबेस टूल्स में अवेलेबल है. मैक्रोज आप रन कर सकते हो. फील्ड्स आप कौन कौन से लेना है, जिसको डेटा टाइप बोला जाता है. टेक्स्ट डेटा टाइप है, नंबर डेटा टाइप है, करेंसी डेटा टाइप है, डेट एंड टाइम डेटा टाइप है. डेटा टाइप वगैरह क्या होते हैं मैं इसको पहले बताने के पहले मैं आपको शॉर्ट में फिर आपको रिवाइज करा देता हूँ चीजें. क्वेरीज ये होता है आस्क क्वेश्चन अबाउट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन योर टेबल. जो टेबल है, टेबल बनी है, whatever information you want to retrieve it, you can fire a query and retrieve the data. आप डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं आपकी क्वेरी के अकॉर्डिंग. फॉर्म अलाउ यू टू व्यू डेटा स्टोर्ड इन योर टेबल. जो भी आपने बना डेटा स्टोर करा उसको फॉर्म में देख सकते हो. फॉर्म का तरीका मतलब एक प्रॉपर वे में आप देख सकते हो. रिपोर्ट, रिपोर्ट जो है वो प्रिंटेड आउटकम है, फाइनल आउटकम है, उसी को आप देखा जा सकता है. अलाउ यू टू प्रिंट डेटा बेस्ड ऑन क्वेरीज और टेबल दैट यू हैव क्रिएटेड.
डेटाबेस मैंने बताया, सबसे पहले डेटाबेस बनता है, डेटाबेस के बाद फिर टेबल बनती है। टेबल मतलब कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, एंड इन टेबल देयर आर कॉलम्स आर देयर, लाइक नेम लेना, एड्रेस लेना, तो उनकी फील्ड रहती है, वो फील्ड अलग अलग कैटेगरीज को बताती है। उनके डेटा टाइप रहते हैं, डेटा टाइप मतलब नंबर वैल्यू है, टेक्स्ट वैल्यू है। क्वेरीज हम मैंने जस्ट आपको बताया, जो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को एक बार और हम समझ लेते हैं। ए डेटाबेस दैट कंटेन टेबल रिलेटेड टू फील्ड contain identical data also known as common field. Access is relational database where Excel is a flat database. अब रिलेशनल डेटाबेस और फ्लैट डेटाबेस में डिफरेंस क्या है? रिलेशनल डेटाबेस का मतलब होता है डेटाबेस के अंदर जो टेबल बनी, द टेबल आर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से संबंधित, और उसमें एक कॉलम कॉमन होता है। और एक्सेल की एक फ्लैट फाइल होती है, उस फाइल में आप डेटाबेस को मेंटेन कर सकते हो। नाउ वी कम टू द पॉइंट हाउ वी कैन क्रिएट द टेबल। वी कम टू द मेन पॉइंट। ये हम जैसे ही हमने फर्स्ट स्क्रीन खोली, ये क्रिएट टेबल। अब आप क्रिएट पे जाएंगे तो टेबल को आप दो तरीके से बना सकते हैं, क्वेरी को दो तरीके से बना सकते हैं, विजार्ड डिजाइन फॉर्म को दो तरीके से बना सकते हैं, रिपोर्ट को दो तरीके से बना सकते हैं। ऑल 4 टाइप्स अवेलेबल इन 2 मोड, दोनों तरीके से बना सकते हैं। ये आपका डिजाइन मोड है और ये आपका विजार्ड मोड है, जिसको हम बोल सकते हैं। ये टेबल आ गया। ये टेबल में ऊपर जो इंडिकेट कर रही है दैट इज अ फील्ड, और नीचे जो है आप उसको क्या वैल्यू देंगे वो आपका। मान लो मैंने आप यहाँ 1 दिया, ये ऑटोमेटिक आईडी ऑटोमेटिक मेंटेन होती है, नीलेश मेंटेन करा। थर्ड मैंने यहाँ पर एड्रेस मेंटेन कर दिया, इंदौर, ठीक है। और एक और मैंने डेट ले ली, डेट फील्ड यहाँ पर ले ली 1/4/11/2020, ये फील्ड होगी। अब नेक्स्ट हमको डेटा मेंटेन करना है, राज उज्जैन, और आप कोई भी ले लो आप, ये 2 रिकॉर्ड्स आई हैव इंसर्टेड, 2 रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट करे थे, फर्स्ट 3 और 4, ये 2 रिकॉर्ड करें। आप चाहो तो यहाँ पे 1 और 2 ले सकते हैं। अब फील्ड में आप चाहें तो फील्ड में आप अलग अलग, देखो ये 4 जो है ना, एक सिलेक्ट ऑल करा, यू कैन राइट क्लिक इट एंड चेंज द रीनेम फील्ड। यहाँ पे हमने क्या दिया, फील्ड नेम। आइडेंटिफिकेशन में हमने क्या दिया, फील्ड नेक्स्ट चेंज द, यहाँ सिटी ले लिया, दैट इज सिटी। फिर यहाँ आप डेट ऑफ बर्थ बोल सकते हैं, निमेश धार, ये रिकॉर्ड हमने मेंटेन करे। ओके करा, फर्स्ट टेबल आई हैव क्रिएटेड, नेम ऑफ द टेबल हमने नॉर्मल टेबल दे दी, एम्प्लॉय। नाउ सी इट। अब आपको इसमें रो इंसर्ट करना, ये डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हो, राइट से नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, नया रिकॉर्ड आप इंसर्ट कर लो। गोपाल, महू, रिकॉर्ड डिलीट करना है, राइट क्लिक, न्यू रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, कट कॉपी पेस्ट, रो की हाइट बढ़ाना, रो की हाइट आप बढ़ा सकते हो। ये दिस इज द मेन थिंग। आपको और अगर नॉर्मल आपको कोई भी चीज बोल्ड करना, अंडरलाइन करना, इटैलिक करना, ये सब आप प्रॉपर कर सकते हो। सो दिस इज द एम्प्लॉय टेबल, 4 फील्ड हमने लिए, आईडी, नेम, सिटी, डेट ऑफ बर्थ। दिस इज द फर्स्ट अप्रोच आई हैव क्रिएटेड। ये पहली अप्रोच है जो मैंने आपको क्रिएट करी। अब एक और डिजाइन व्यू से हम करते हैं जिसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे आईडी में हमने न्यूमेरिक वैल्यू ली, नेम में हमने टेक्स्ट अल्फाबेट ली, सिटी में हमने अल्फाबेट ली, डेट ऑफ बर्थ में डेट का फॉर्मेट लिया। अब हम डिजाइन अप्रोच से हम टेबल देखते हैं कि टेबल कैसे बना सकते हैं। वही चीज को हम क्वेरी का बोलेंगे तो हमें बोला कि इंदौर सिटी के सारे डेटा करो तो ये क्वेरी बन जाएगी। वही चीज हमें बोलेंगे कि डेटा पर जिसका 2020 में बोर्न हुआ उनका डिस्प्ले करो तो ये क्वेरीज बन जाएगी। जो डेटा हमारा टेबल में स्टोर है, जो डेटा हमारा सारा स्टोर है, उसको हम फॉर्म के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अब हम डिजाइन व्यू देखते हैं। नाउ वी कम टू द डिजाइन व्यू। दिस इज द सेकंड अप्रोच। ये सेकंड अप्रोच है
अब यहाँ हमको डिजाइन अप्रोच का एडवांटेज ये होता है कि डिजाइन अप्रोच में आपको आपकी फील्ड और उसका डेटा टाइप क्या लेना है ये आप देख सकते हो। मान लो मैंने पहला न लिया नंबर, इसका ये सारे डेटा टाइप है। नाउ व्हाट डज इट मीन? डेटा टाइप मतलब उस पर्टिकुलर कॉलम के लिए किस टाइप की वैल्यू जाएगी। टेक्स्ट मतलब अल्फाबेट, नंबर मतलब न्यूमेरिक, डेट एंड टाइम मतलब डेट एंड टाइम, और ऑटोमेटिक नंबर मतलब ऑटोमेटिक होता है। फर्स्ट 4 डेटा टाइप वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी फास्ट, उसके बाद हम देखेंगे। तो हम इसको नंबर ले लेते हैं, फिर नेम, स्टूडेंट की टेबल हम बना रहे हैं तो स्टूडेंट नेम, टेक्स्ट ले लिया, स्टूडेंट एड्रेस, इसको भी हम टेक्स्ट ले लेते हैं, और एक डेट ऑफ बर्थ का ले लेते हैं, स्टूडेंट डेट ऑफ। तो 4 थिंग्स आर देयर, ये हमने बनी। यहाँ हमको फील्ड लेना पड़ी, वहां फील्ड ऑलरेडी बनी थी। आपकी फील्ड के बाद नाम देना हो तो दो, अदरवाइज देयर इज नो नीड। हियर वी हैव टू गिव द नेम। अब आप चाहो तो यहाँ राइट क्लिक करके ये डिजाइन व्यू है, डेटाबेस शीट व्यू, पाइवट, ये सब देख सकते हो। अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ तो वो टेबल का नाम मांगेगा फर्स्ट। यहाँ हमने स्टूडेंट का नाम दे दिया, ये स्टूडेंट टेबल। अब यहाँ भी आप रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हो, ये तो हमने लिया नहीं था। 1 ABC एड्रेस उज्जैन, डेट ऑफ बर्थ 25/2014, फिर नेक्स्ट RTF मुंबई और सेवेंटीन। फिर थर्ड रिकॉर्ड मानपुर, दिस 3 रिकॉर्ड्स आई हैव एंटर्ड इट, ये 3 ऑटोमेटिकली सेव हो गए। टेबल को डिलीट करना, राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट, रीनेम, डिलीट, आप डिलीट कर सकते हो, टेबल की प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो। ऐसे एम्प्लॉय, सो देयर आर 2 वेज जो हमने देखा, विजार्ड एंड डिजाइन, विजार्ड डिजाइन, विजार्ड डिजाइन, ये है। दैट्स ऑल फॉर टेबल। Thank you very much. If you have any query, you can write it in the comment box.